Welcome students to this another session of accounts. Today we will be taking up sum number 9 of your textbook, page number 85. Page number 85, sum number 9. From the following receipt and payment account of Parnell Sports Club, Pune, and additional information you are required to prepare income and expenditure and balance sheet. And it is for the year 18-19. It is for the year 18. You are given receipt and payment account. You are given receipt and payment account. Let us see all the items one by one. The opening balance is 5,000. Subscription you are preparing for 18-19. So 16-17 was and 17-18 was for previous year. We are concerned with 18-19. So 18-19 will come in the income side of income and expenditure account, and the adjustment we will see what we have to do it. Then donation 15,000. If something is given in the adjustment, donation 50% will be transferred to building fund and revenue will be transferred to, we highlight here, donation. 50% will be transferred to building fund and 15% will be transferred to income side of income and expenditure account. Entrance fees 70% is to be capitalized. So 30% will be transferred to income and expenditure account and 70% will be transferred to capital fund. Life membership fees. Generally, life membership fees is capitalized, it is added to capital fund. But here it is given, it is revenue income. So what all is mentioned in the question, we have to obey it. So you have to put it in the income side of income and expenditure account. Tournament receipt, income side of income and expenditure account. Overdraft prepaid. I will explain you what is to be done for the overdraft of prepaid. Then salary, it will come in the expenditure side, electric charges, expenditure side, municipal taxes, expenditure side, purchase of sports material, expenditure side, then general expenses, expenditure, billiard expenses, expenditure, repairs to ground expenditure, tournament expenses, all these are expenditure. They will come in the expenditure side of income and expenditure account. Then cash in hand and cash at bank. These are closing balance. These are closing balance. They will appear in the balance sheet asset side. Then let us see the adjustment. 50% of the donation are to this I have already explained. Whatever you have received, 50% will be transferred to building fund and entrance fees, 70% is to be capitalized. Then subscription for 16-17 and 17-18 are in arrears, are still in arrears. This also I will explain you. Then this fourth point I will explain you. Just wait for these two items and then I will explain you point number 4. Outstanding subscription for the current year. It is 8,000. So subscription is 18-19. You have received 70,000. So 8,000 is still to be received. 8,000 will be added to subscription and it is your asset. It will come in the asset side. Then closing stock of sports material is 8,000. So it will appear in the balance sheet and some adjustment will be done in this purchase of sports material item. I will explain you when we do the sum. And closing stock was 8,000 and depreciation is to be provided at 12.5%. So on 8,000, 12.5% will be calculated. Now point number 4, you see, we are not given opening capital. Here I am using a wrong word, it is not opening capital, it is capital fund. We are not given the opening balance of capital fund. But
the figures of assets and liabilities are given. So from this figure we will have to arrive in figures में से अपन को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल फंड अराइव करना पड़ेगा. तो देखते हैं, पहले अपन ये वाला देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं. तो उसके लिए अपन चलते हैं अपने एक्सेल शीट में. देखिए, अपने को शुरू की कैपिटल पता होनी चाहिए. क्या पता होनी चाहिए? शुरू की कैपिटल. तो शुरू की कैपिटल क्या, आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालते थे ना सिंगल एंट्री में. तो यहाँ पे ही आपको लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी साइड लिखना है, असेट को असेट साइड लिखना है. अपन करके देखते हैं. बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड में आता है. किस साइड में आता है? लाइबिलिटी साइड में आता है. बिल्डिंग फंड कितना है? बिल्डिंग फंड 47,000. कितना है? 47,000 बिल्डिंग फंड. उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000. बैंक ओवरड्राफ्ट उसके बाद लैंड 1,50,000. लैंड 1,50,000. उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000. 30,000 स्पोर्ट्स मटेरियल. स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब अपने को पैसा मिलना बाकी. सब्सक्रिप्शन एक तरह की फीस की तरह होता है. ये फीस मिलना बाकी है. तो जो फीस मिलना बाकी होती है ना, वो अपना असेट होता है. अपन असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. अपना है 16-17 का बाकी है और 17-18 का बाकी है. ये 2 साल का बाकी है. कितना कितना अमाउंट बाकी है देखते हैं अपन. 16-17 का आपका 2,500 रुपये बाकी है. 2,500 रुपये बाकी है. और 17-18 का 4,000 रुपये बाकी है. कितना है? 4,000 रुपये बाकी है. और असेट में एक और चीज आती है. क्या आता है असेट में? कैश. जो 18-19 का ओपनिंग बैलेंस था, जो 18-19 का ओपनिंग बैलेंस था, वो 18 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया. तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो 18-19 का ओपनिंग बैलेंस था वो 17-18 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया. जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है वो प्रीवियस ईयर का क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस. तो ये क्लोजिंग बैलेंस को अपन कहां लिखेंगे? अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं कैश इन हैंड. क्या लिखते हैं? कैश इन हैंड. 5,000 रुपया कैश इन हैंड. तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, सारी चीजें लिख ली. अब अपन इनकी टोटल करते हैं. इनकी टोटल आई 1,91,500. 1,91,500. और इधर की टोटल आई 79,000. कितनी आई? 79,000. 79,000. अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं बच्चों. तो आपका क्या गया? 1,12,500. 1,12,500. ये आपका हो गया कैपिटल फंड. कैपिटल फंड. ये जो आपका कैपिटल बैलेंस इस साल के एंड का हुआ, जो मार्च 18 का आपका बैलेंस कैपिटल फंड हुआ, वो आपका क्या होगा? 18-19 का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा. देखिए बच्चों, लास्ट ईयर आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस था, तो ये अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस. तो आप यहां पे लिखेंगे कैपिटल फंड. कैपिटल फंड कितना आपका? 1,00,000. आई रिमेंबर 1,12,500. ये अपन ने लिख लिया. अब इसमें कुछ एड लेस करना पड़ेगा, इस साल का प्रॉफिट या दूसरी चीजें. आई होप ये आपका क्या हो गया? एक तरह का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते थे ना आप. तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सिंगल एंट्री में बच्चों? पढ़ा है ना? याद आया होगा 11th क्लास में. जिन्होंने पढ़ा है तो याद आएगा. ओके. तो ये आपका ओपनिंग फंड निकाल दिया. ये
2-3 मार्क की कैलकुलेशन आ सकती है। अब अपन ने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लिया। अब ये अपना पॉइंट नंबर 4 खत्म हुआ। क्या हुआ? पॉइंट नंबर 4 खत्म हुआ। अब अपन बाकी सम करने की तरफ चलते हैं। अब बच्चों देखिए, समझिए, अपने को जो रिसीप्ट हुई है, क्या हुई है? रिसीप्ट। अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है 16-17 का। किसका मिला है? 16-17 का। 16-17 का अपने को 2000 रुपया मिला है। कितना मिला है? 2000 रुपया। लेकिन अपना 16-17 का कितना बाकी था? अपन को 2000 रुपया मिला है, लेकिन अपना बाकी कितना था? 2500। तो 2500 में से 2000 मिल गया, तो बाकी कितना बचा? 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपये बचा है ना, ये अपन को पैसा वसूल करना है। क्या करना है? पैसा वसूल करना है। तो जो पैसा वसूल करना है, जो पैसा वसूल करना है ना, वो अपना क्या होता है? असेट। उसको अपन असेट साइड में लिखते हैं, ये 500 रुपया। समझ में आई बच्चों? अच्छा, अब 17-18 में 3000 रुपया कितना है? 3000 रुपया मिला है। कितना मिला है? 3000 रुपया मिला है। कितना? 17-18 में 3000 रुपया मिला है। अपना बाकी कितना था? 4000। तो 4000 में से 3000 मिल गया, तो अपना 1000 रुपया और बाकी रहा है। कितना बाकी रहा है? 1000 रुपया बाकी रहा है। 17-18। समझ में आई बच्चों? अच्छा, आप सुनिए। आप अब आप मेरे से पूछेंगे, सर 4000 में से 3000 मिल गया, या इधर 2500 में से 2000 मिल गया, तो इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में भी लिखो। नहीं बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में केवल 18-19 की ही इनकम आएगी या एक्सपेंडिचर आएंगे। 16-17, 17-18 या 19-20 का नहीं आएगा, केवल 18-19 का आएगा। तो अपन अब देखते हैं, इधर इन दोनों को अपन ने कर लिया ना बच्चों। अब 18-19 में कितना है? 70,000। 18-19 में कितना है? बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है? 70,000। 70,000, 70,000 इधर लिखा। अब इसमें एडजस्टमेंट है, मैंने मार्क कर रखा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है अपन देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर वॉज 8,000 रुपया। तो 8,000 मिलना बाकी है, तो जो मिलना बाकी है उसको करंट ईयर की इनकम में जोड़ देंगे, और जो मिलना बाकी है वो अपना क्या है? असेट भी है, वो अपना। देखिए, ये सम थोड़ा सा पहली बार आप कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर इजी लगता जाएगा। ये नए तरीके का सम है। अच्छा, जो इस साल मिला वो आपने यहाँ पे लिख लिया, और जो बाकी है उसको क्या लिखेंगे? एड आउटस्टैंडिंग। कितना है एड आउटस्टैंडिंग? 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया आपका ये हो गया। इस साल की आपकी इनकम हो गई 78,000। कितनी हो गई? इस साल की इनकम आपकी 78,000 हो गई। अब तो जो 8,000 मिलना बाकी है, इसको अपन क्या है? ये अपना असेट है। क्या है? असेट। 18-19 का ये अपना क्या है? 18-19 का ये अपना असेट है। 8,000 रुपया अपना असेट है। ओके, अच्छा। उसके बाद डोनेशन। डोनेशन मैंने हाईलाइट कर रखा है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। देखते हैं। 50% आर फॉर बिल्डिंग फंड। 50% आर फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन बाय डोनेशन। डोनेशन कितना है? इनर कॉलम मेरे ख्याल से 15,000 रुपया आया है। 50% लेस ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। 50% कितना हुआ? 7,500 रुपया। तो इस बार की इनकम कितनी हो गई? 7,500। बच्चों फिर वापस समझाता हूँ। डोनेशन 15,000 रुपया है। इसमें नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? 50% को बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करना है, तो 7,500 को बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करा। आउटर कॉलम में आपकी नेट इनकम क्या हो गई? 15,000। और ये जो 15,000 है, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बिल्डिंग फंड में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे?
बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 47,000 ओपनिंग बैलेंस 47,000 add donation रिसीट, डोनेशन रिसीव्ड है 7,500 रुपया। तो आपने आउटर कॉलम में लिखा, कितना हो गया आपका? दिस प्लस दिस, तो आपका 54,500। ठीक है। एंट्रेंस फीस अब आपकी कितनी है? 1,700 रुपया। इसमें भी एडजस्टमेंट है, पहले अपन लिखते हैं बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस 1,700 रुपया आपकी एंट्रेंस फीस है। और ये जो एंट्रेंस फीस है इसमें 70% क्या होनी है? कैपिटलाइज होनी है। क्या होनी है? कैपिटलाइज। मतलब जो 1,700 रुपए मिले ना बच्चों, उसमें से 70% कहां पे जाएंगे? ये कैपिटल फंड में जाएंगे। तो इसका 70% अपन को कैलकुलेट करेंगे, लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना है? 1,700 रुपया, 70% आपका कितना हो गया? इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो 1,190 रुपया अपन कहां ट्रांसफर कर देंगे? 1,190 रुपया दिस माइनस दिस, ये आपका 510 रुपया आपकी इनकम हो गई। और 1,190 रुपया एट एंट्रेंस फीस। कितनी है एंट्रेंस फीस? 1,190 रुपया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस को अपन कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोलता है ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल इनकम नहीं है, ये रेवेन्यू इनकम है। तो इसको बाय लाइफ फीस। कितनी है लाइफ मेंबरशिप फीस? लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000। कितनी है? 17,000। ठीक है बच्चों। फिर टूर्नामेंट रिसीप्ट 60,000 रुपया। टूर्नामेंट रिसीप्ट बाय रिसीप्ट कितनी है आपकी? 60,000 रुपया। आपने 60,000 रुपया इधर लिख दिया। तो इस तरह से अपनी इनकम साइड की सारी चीजें आ गई। ओके, अब अपन चलते हैं इस साइड, पेमेंट साइड। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट आया है, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया, इट इज रीपेड। यहाँ पे लिखा है रीपेड। इसको मैं समझाता हूं बच्चों। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितना था? 32,000। पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में, पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 था। इसका आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो ये आइटम खत्म हो गई। ये आइटम, अरे 32,000 देने थे और 32,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब बैलेंस क्या बचा? 0 अंडा। तो यहाँ पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आता है ना, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्या? सैलरी। सैलरी में कोई एडजस्टमेंट मैंने मार्क नहीं किया है, तो सैलरी अपन खर्चे की तरफ लिख देंगे। टू आइटम है सैलरी 10,000, कितना है? 10,000। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,700 रुपया, 2,700 रुपया। तो
और टैक्सेस 2700 रुपया, ठीक है। तो उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास पिछले बार क्लोजिंग स्टॉक था स्पोर्ट्स मटेरियल का 30,000 का, 30,000 का क्या था आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस था। तो ये जो पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस बार का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पे आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक। आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, 30,000। ओके, ये 30,000 मैंने लिख दिया बच्चों। अब आपने परचेज कितना करा, 50,000 का। ओपनिंग स्टॉक खरीदा आपने 50, शुरू में 30 था और 50,000 का खरीदा, तो टोटल कितना हो गया, एड परचेज, परचेज 50,000। तो अब आपके पास क्या हो गया है, ये 80,000 रुपया हो गया, 80,000 रुपया टोटल हो गया। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना था, अरे भाई शुरू में 30 था, 50 का खरीदा और 8,000 रुपया का स्टॉक क्या हुआ, बच गया। 30 का था, 50 का खरीदा, तो टोटल 80 हो गए। 80 में से 8,000 बच गया, तो टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, देखो बच्चों बच गया, जो बच गया उसको क्या करेंगे, लेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो बच्चों ये कितना हो गया, मैं समझाता हूं वापस। देखो शुरू में इतना था, इतना खरीदा, तो टोटल इतना खर्चा हो गया ना अपना, लेकिन इसमें से जब बच भी गया तो इसको माइनस करेंगे तो टोटल खर्चा आपका 72,000 हो गया। और ये क्लोजिंग स्टॉक को इमीडिएट दूसरा इफेक्ट दे देते हैं, कहां पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 8,000 रुपया, कितना है, 8,000 रुपया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपया, जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपया। तो जनरल एक्सपेंसेस यहां पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, कितना है, 500 रुपया जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद बिलियर्ड एक्सपेंसेस 3,000 रुपया, 3,000 रुपया बिलियर्ड एक्सपेंसेस। बिलियर्ड एक्सपेंसेस 3,000 रुपया। रिपेयर्स टू ग्राउंड 500 रुपया, 500 रुपया रिपेयर्स टू ग्राउंड 500 रुपया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000, एक्सपेंसेस 50,000 रुपया। अच्छा, अब ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेस को अपन क्या करते हैं, ये अपना असेट है तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, कैश इन हैंड एट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड 7,000 और कैश एट बैंक 14,000, 7,000 और ये आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 7,000 और 14,000। ओके बच्चों, इसको अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वन बाय वन एडजस्टमेंट देखते हैं। इस एडजस्टमेंट का अपन इफेक्ट देख चुके हैं ना, 50% टू बी एडेड टू बिल्डिंग फंड और 50% अपन इनकम में दिखा चुके हैं, 70% अपन कैपिटलाइज कर चुके हैं
सब्सक्रिप्शन 500 रुपया स्टिल इन एरियर, तो ये अपन बता चुके हैं, लेना बाकी है। और ये अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बना चुके हैं। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग, ये अपन बता चुके हैं करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। और उधर भी स्टॉक का भी कर चुके हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक को बता चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर प्रोवाइड करना है 12.5% पे, तो 8,000 पे 12.5%, कितना 12.5%, तो इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। 1,000 रुपया का अपना क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया। तो जो लॉस है वो कहां पे लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। ₹1,000। So I think we have completed all our adjustment. Now let us do the totals and find out profit or sorry, here it is not profit and loss, here it is surplus and deficit. आपकी इस साइड की टोटल कितनी आती है, 1 लाख, या आउटर कॉलम में लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, 1,63,010, 1,63,010। और इधर की आपकी टोटल कितनी आती है, इधर की आपकी टोटल 1,43,700, 1,43,700। एक मिनट देखते हैं अपन, इधर सब चीजें आउटर कॉलम में लिख ली ना अपन। हाँ, अब अपना कितना हुआ, इज इक्वल टू, इनकम साइड ज्यादा है तो ज्यादा वाली साइड में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, तो 93,310 आपका क्या आया, सरप्लस। क्या आया, सरप्लस। टू सरप्लस 19,310, 1,60,010 टोटल। एक बार से अपनी चेक कर लेते हैं अपन, जो आपकी टोटल चेक हो गई। तो इसको भी आपने डिलीट कर दिया। ये सरप्लस जो है इसको अपन क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं ना, पार्टनरशिप में, यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस। कितना हो गया, 19,310। यस, तो ये अपन ने इधर ऐड कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, बाकी अपन को इधर की टोटल आउटर कॉलम में लिखनी है, इज इक्वल टू इन तीनों की टोटल 9,500 इधर लिख दिया। अच्छा, अब एक आध चीज और लिखनी है अपने को। देखिए, शुरू में अपने पास लैंड कितना था, ये अपन ने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई थी ना, तो जो पिछले साल की बैलेंस शीट का क्लोजिंग फिगर था वो इस साल का ओपनिंग फिगर हो जाता है। अब ये अपना ओपनिंग बैलेंस था लैंड का, अपन ने कुछ खरीदा है क्या, नहीं। अगर कुछ खरीदते तो ऐड कर देते बच्चों। अगर आप कुछ खर्चा करते ना, जैसे एक्सपेंडिचर साइड में आता परचेज ऑफ लैंड 25,000, तो आप 1,50,000 में से 25 जोड़ देते। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लैंड 1,50,000, लैंड 1,50,000। और स्पोर्ट्स मटेरियल का आप क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके हैं, ठीक है। ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आप जो बैलेंस था वो लिख चुके हैं। अब कैश इन एंड कैश एट बैंक आप लिख चुके हैं। लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो गया था, इसको आप ट्रांसफर कर चुके हैं यहाँ पे 47,000, और कैपिटल फंड आपने ट्रांसफर कर दिया था। अब अपन क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं। आपकी बैलेंस शीट की टोटल कितनी आती है, 1 लाख
आपकी बैलेंस शीट की टोटल आती है 180। इसमें देखो बच्चों एक चीज थी कि जो डेप्रिसिएशन था ना स्पोर्ट्स मटेरियल का, वो स्पोर्ट्स मटेरियल का डेप्रिसिएशन आपने यहां से माइनस नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 8,000 रुपया। 1,000 रुपया आपने माइनस करा, लेस डेप्रिसिएशन अब ये आउटर कॉलम में आप क्या लिख दोगे, 7,000 रुपया। ठीक है, तो आपने जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं लिखा था वो अब आपने लिख दिया, इसको आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। अब आपकी टोटल 1,87,500, 1,87,500। अब अपन इधर का भी आउटर कॉलम में लिख देते हैं सम $133 और इन दोनों की टोटल आपकी क्या हो गई 187,500, 187,500। तो ये बच्चों अपना बैलेंस शीट आराम से मिल गया बिना कोई दिक्कत के। So in this way we have completed this sum. कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजिए, मेल आईडी पे भेजिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। सो वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9, वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ते रहिए और अच्छे से आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करिए। थैंक्स।